Yes, good morning students. Today we are going to do the next topic of our history chapter. The name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe, and our today's topic is the Age of Revolutions. In this topic we will discuss how different revolutions took place in different countries of Europe and what were the reasons for those revolutions and what were the effects of those revolutions in Europe. So let's start the topic. Well, first point is liberal nationalists started revolutions against conservative monarchs. As we all know, after the death of Napoleon, after the defeat of Napoleon in France, from the Treaty of Vienna, a new conservative system was set up in whole of Europe. Old kings which were friends of Napoleon or who were under Napoleon, they were abolished, their rule was abolished, and in those places some new kings were set up who were the followers of conservatism. So throughout the Europe after 1815, the leaders who were followers of conservatism, they were ruling. Okay, so but still, as we knew what is liberalism, what was liberal nationalism, there were some liberal nationalist leaders who were fighting to end the conservative rule in Europe. Their wish was to end the conservative rules of monarchs, and instead, in place of that, they wanted to bring democratic republic. And if not the democratic republic, at least constitutional monarchy was their aim to set up in Europe. So these liberal nationalist leaders, they continued their efforts to end the rule of conservative monarchs. So they continued their efforts in different parts of Europe, in different countries of Europe, especially in countries of in those countries where German language was spoken, where Italian language was spoken, in some parts of Poland, etc. So let's start from France first. As we know, in the year 1789, the first revolution of France took place, and at that time Louis XVI's rule was ended. And after Louis XVI, we knew democracy came in France. But after some time, Napoleon, he became the king of France, and the effect of French Revolution was ended. But after Napoleon's defeat, we already know Louis XVIII, who was brother of Louis XVI, he was made the king of France. So from 1815 onwards till 1825, at the time of his death, Louis XVIII remained the king of France. Once Louis XVIII died, then his brother Charles X became the king of France. Now we are in year 1830. In 1830, Charles X was ruling over France. In 1830, these liberal nationalist leaders, they started a revolution against the king Charles X, and they forced the king to abdicate from his office. So Charles X resigned from his office, and in this way the rule of Charles X in France ended. After that, the revolutionaries, they decided to make a different person the king of France, and that person was Louis Philippe. He didn't belong to the earlier dynasty of Bourbon dynasty. He was some new person from new dynasty, and he was made the head of the constitutional monarchy of France. Earlier in France there was absolute monarchy. There was no restriction on the king, on the powers of the king Charles X. But now in the new France, as we know, revolutionaries had started the new monarchy. This was the constitutional monarchy. A constitution was framed, some laws were framed, and the king was forced to abide by those laws and rule according to those laws. In this way, the new regime in France was
the constitutional monarchy. So Louis Philippe, who was the new king of France, he was just a constitutional head. He was just a constitutional monarch, and he was the head of the constitutional monarchy. He had to follow the rules, the laws given in the constitution. So this was a big development in Europe, in France, and whatever happened in France, either it happened in 1789 or in 1830, its effect was very strong over whole of Europe. जैसे 1789 में रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, तो उसका असर पूरे यूरोप में हुआ। अभी जो दूसरा रेवोल्यूशन हुआ 1830 में फ्रांस में, इसका भी जो इफेक्ट है पूरे यूरोप पे पड़ा। तो जब यहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, तो फ्रांस को देखकर दूसरे कंट्रीज़ के जो रेवोल्यूशनरीज थे, लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने भी अपने अपने कंट्री में रेवोल्यूशन करना शुरू कर दिया। तो जो 1830 का रेवोल्यूशन था, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी और इसने पूरे यूरोप में अपनी जो है असर छोड़ा। जी स्टूडेंट्स, हम एक नज़र डाल लेते हैं फ्रांस के मेन किंग्स जो हमारे चैप्टर में जिनके नाम आ रहे हैं, और उनका जो है सीक्वेंस देख लेते हैं कि किसके बाद कौन किंग बना था फ्रांस का। जी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो 1774 में लुई 16 नाम का पर्सन जो है फ्रांस का किंग था, और वो बोर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करता था। 1774 से लेकर 1792 तक उसने रूल किया, और लुई 16 के बाद नेपोलियन जो है वो अपनी फोर्स के बल पर राजा बन गया था वहाँ का। 1804 से लेकर 1815 तक उसने रूल किया। ठीक है, ये वही समय था जब वो लड़ाइयाँ लड़ रहा था 4 पावर्स के खिलाफ, और आखिरकार वो हार गया था बैटल ऑफ वाटरलू में 1850 में। तो नेपोलियन की हार के बाद ट्रीटी ऑफ वियना में ये डिसाइड किया गया कि लुई 16 का जो ब्रदर है लुईस 18, वो ही दोबारा से किंग बनाया जाएगा। तो 1824 तक लुईस 18 ने रूल किया, तब उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद जो मेन किंग बना वो था चार्ल्स 10। चार्ल्स 10 जो है लुईस 18 का ही ब्रदर था। इसने 1824 से लेकर 1830 तक रूल किया, और 1830 में हमें पता है लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने रेवोल्यूशन कर दिया और चार्ल्स 10 को रूल से हटा दिया गया, और इसकी जगह पे 1830 में रेवोल्यूशन के साथ लुईस फिलिप नाम के पर्सन को फ्रांस का किंग बना दिया गया। तो चलो स्टूडेंट्स, आगे हम टॉपिक में बढ़ते हैं। जो फ्रांस का रेवोल्यूशन था 1830 का, इसका असर पूरे यूरोप के कंट्रीज पे पड़ा। अलग अलग कंट्रीज में रेवोल्यूशन हुए अपने अपने बुरे किंग्स के खिलाफ। एग्जांपल है हमारे पास बेल्जियम की। हमें पता है 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, उसमें एक प्रोविजन थी कि जो बेल्जियम है ये नीदरलैंड को दे दिया गया था। एक्चुअली पहले हॉलैंड कंट्री हुआ करता था, तो हॉलैंड में बेल्जियम मिला के नीदरलैंड नाम का एक कंट्री बना दिया गया था। लेकिन बेल्जियम वाले इस फैसले से खुश नहीं थे, वो आज़ाद होना चाहते थे, अपना नेशन बनाना चाहते थे। इसलिए बेल्जियम जो है उसने 1830 की क्रांति से शिक्षा लेते हुए फैसला किया कि हम भी लड़ेंगे, और उन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और नीदरलैंड से आखिरकार आज़ाद हो गए। ये इन्फ्लुएंस था 1830 के फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही, कि बेल्जियम के लोगों में हौसला पैदा हुआ कि हम भी आज़ादी ले सकते हैं, हम भी आज़ाद हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, एक एग्जाम्पल है। ऐसे और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन हुए 1830 के फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, और उन्होंने अपने बुरे किंग्स को निकाल के बाहर फेंक दिया। हाँ जी, नेक्स्ट है मेन टॉपिक हमारे पास, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। बेल्जियम का केस हमने देख लिया, आगे हमारे पास ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टूडेंट्स, पहले आप मैप देख लो, मैं आपको मैप दिखाता हूँ, वर्ल्ड का आपकी बुक में है। पेज नंबर 6 पे मैप दिया गया है। इस मैप में आप देख सकते हैं, ये आपको नीदरलैंड भी दिखाई दे रहा है, फ्रांस भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिधर प्रशिया भी दिखाई दे रहा है। कोई जर्मनी नाम का कंट्री नहीं, ना ही उस टाइम पे इटली नाम का भी कंट्री था, छोटे छोटे पार्ट्स में बना। अगर हम ग्रीस की बात कर लें, अब हम बात कर रहे हैं ना ग्रीस की, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ग्रीस जो है जहाँ पर
यूरोप के साउथ में एक छोटा सा कंट्री है। ये ग्रीस जो है 15th सेंचुरी से लेकर ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा रहा था। अब आप पूछेंगे कि ऑटोमन एम्पायर क्या है? जी आप देख सकते हो ऑटोमन एम्पायर दिखाया गया है। ये सारा जो ग्रीन पार्ट है जो ऑटोमन एम्पायर है। ऑटोमन एम्पायर में जितने भी देश शामिल थे वो सारे टर्की के अंडर थे। टर्की जो है इसका ज़्यादातर हिस्सा एशिया में पड़ता है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में पड़ता है। टर्की एक मुसलमान कंट्री है, तब भी मुसलमान कंट्री था। टर्की ने 15th सेंचुरी से लेकर ग्रीस को अपने कब्जे में कर रखा था और ग्रीस के लोग पिछले 400 साल से, लगभग 400 साल से गुलामी का नर्क भोग रहे थे। वो आज़ादी चाहते थे और इस टाइम जब पूरे यूरोप में रेवोल्यूशंस हो रहे थे, जब पूरे यूरोप में लिबरल नेशनलिस्ट लीडर जो हैं वो बुरे किंग्स को बाहर निकाल के फेंक रहे थे, तो ग्रीस के लोगों में भी इंस्पिरेशन आई कि क्यों ना हम भी आज़ादी हासिल करें। हम कभी डिस्टिंक्ट नेशन थे, क्योंकि ग्रीस कंट्री जो है उसमें प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन लोग रहते हैं। वो क्रिश्चियन लोग थे, लेकिन रूल कौन कर रहा था उन पे? टर्की का राजा। तो ग्रीस के लोग टर्की के राज्य से आज़ाद होना चाहते थे, मतलब ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी चाहते थे। तो अभी जो हालात यूरोप में बन रहे थे रेवोल्यूशन के, उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए और नेशनलिज्म से इंस्पायर्ड होकर ग्रीस के लोगों ने ये फैसला किया कि वो आज़ादी प्राप्त करेंगे, ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद होकर रहेंगे। तो ये है हमारी ग्रीक की कहानी, ग्रीस की कहानी। तो 1820s के डेकेड में 1821 ऑनवर्ड जो है इन्होंने अपनी आज़ादी की जंग खुलेआम शुरू कर दी। देखिए ये जो ग्रीक लोग हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है पूरे यूरोप को। जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, माना जाता है कि इसकी फाउंडेशन ग्रीस कंट्री में रखी गई। ग्रीस कंट्री में जो है अंग्रेज़ों का कल्चर, यूरोप का कल्चर जो है उसकी फाउंडेशंस पाई जाती है। यूरोप के लोग आज भी मानते हैं कि जो ग्रीक कंट्री है, ग्रीस कंट्री है, ये पूरे यूरोप की सिविलाइजेशन का क्रेडल है। इट इज़ सेड दैट ग्रीस इज़ द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रेडल होता है एक तरह का, जिन्होंने पंजाबी च पंगूड़ा कहते हैं, जिसमें बच्चे को बच्चे ने जड़ा झूटा चलाया जाता है। मीन्स कि शुरुआत जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन की ग्रीस से हुई। ग्रीस में ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए पुराने टाइम में, जो कि उनके महान ग्रंथ थे। कभी ग्रीस जो है उनकी क्रिश्चियन रिलीजन की जो है हेड ऑफिस हम कह सकते हैं कि ग्रीस में हुआ करता था, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो ग्रीस के साथ पूरे यूरोप की सहानुभूति थी। पूरा यूरोप जो था हमदर्दी रखता था ग्रीस से, और यूरोप के पोएट्स ने भी जो है ग्रीस की आज़ादी के लिए बहुत सारी पोएम्स लिख डाली। ऐसा ही एक पोएट था इंग्लिश लिटरेचर का जिसका नाम था लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन बहुत ही फेमस पोएट हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर के। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं, जैसे डॉन जुआन है, चाइल्ड हेरल्ड्स पिलग्रिमेज है, बहुत ही फेमस वर्क्स हैं इनके। शायद आपके इंग्लिश लिटरेचर में भी कोई पोएम इनकी जो है ज़रूर होगी। तो लॉर्ड बायरन जो हैं वो इतनी सिंपैथी रखते थे ग्रीस के साथ कि वो खुद एक पोएट होने के बावजूद सिपाही बनकर ग्रीस की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए, और 1824 में वहीं लड़ते हुए उनकी मौत हो गई। वो फ्रंट पे लड़ रहे थे और वहाँ पे उनको मलेरिया हो गया और फीवर के साथ उनकी जो है वहीं मोर्चे पे ही डेथ हो गई। तो एक तरह से जो है कह सकते हैं कि वो आज़ादी की जंग के लिए शहीद हो गए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ग्रीस को ऑटोमन एम्पायर से, टर्की के सुल्तान से आज़ादी मिल जाती है। वो समा कौन सा था, वो साल कौन सा था? 1832। 1832 में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी मीन्स समझौता हुआ, ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। देखो जो कॉन्स्टेंटिनोपल है ये बहुत मेन सिटी है ग्रीस का, तो वहाँ पे जो है एक समझौता हुआ टर्की और ग्रीस के बीच, और टर्की के सुल्तान ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम आज से 1832 से जो है ग्रीस को
फ्री कंट्री मानते हैं और इनको फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, और उस दिन से ग्रीस आज़ाद है। तो ये थी हमारे आज के टॉपिक की कंटेंट, एज ऑफ रेवोल्यूशंस, जिसमें हमने पढ़ा कि लिबरल नेशनलिस्ट लीडर्स ने यूरोप में रेवोल्यूशन करने शुरू किए। 1830 में ऐसा बहुत बड़ा रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ जिसका असर बेल्जियम जैसे कंट्रीज पे हुआ, और इसी समय जो है दूसरी साइड पे ग्रीस में आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, और उस जंग में ग्रीस को आज़ादी हासिल हुई। थैंक यू स्टूडेंट्स।